Namaskar and pranam to all of you. Again, I am coming back to my channel Asit Government Rule Guru. Let's compete. Today, I will discuss winner MCQ 4 related to the CCS Leave Rules 1972. In this part, I will discuss another two important leave, leave not due and extraordinary leave. In this part, I will discuss 10 MCQs and I will clarify about leave not due and extraordinary leave. You can get complete information. You must have patience and you go through the videos and you can get nice information. Questions are framed according to the latest pattern. So my friends, please subscribe my channel, share my channel and like my channel so that you can get notification for my upcoming videos. So I am going to start winner MCQ 4 CCS Leave Rules 1972. Two very important leaves I will discuss. So now I am going to start. You see, first one, it is given you see correct which of the above statement is or are correct one. Correct statement हम डिटेक्ट करेंगे. Three statements given. First statement, leave not due may be granted to a government servant in permanent employee or quasi permanent employee other than a military officer, limited to a maximum of 360 days during the entire service on medical certificate. Second one, leave not due may be granted to a government servant in permanent employee or quasi permanent employee other than a military officer, limited to a maximum of 360 days during the entire service without medical certificate. Third one, leave not due shall be limited to the half pay leave he is likely to earn thereafter. Three statements given. First statement is correct one. You know, leave not due, यदि आपका कोई लीव नहीं है, आप LND ले सकते हो, तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा. तो आप जितना दिन का LND लोगे, तो आगे में, इट मीन्स इन फ्यूचर, इन पोस्टरिंग टाइम एंड इन सब्सिक्वेंट टाइम, how many HPL will be credited in your account, from that account actually LND must be debited. तो अभी आपका खाते में कोई लीव नहीं है, आप LND ले सकते हो और आगे में जो आपको HPL आपका खाते में क्रेडिट होगा उससे LND डेबिट होगा, राइट. तो टोटल एंटायर सर्विस में हम 360 डेज का LND लेंगे, लीव नॉट ड्यू लेंगे एंटायर सर्विस में, और मेडिकल सर्टिफिकेट मस्ट ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट. और आगे में देखेंगे इन सर्टन केसेस एक्चुअली मेडिकल सर्टिफिकेट इज नॉट रिक्वायर्ड. मगर आपको याद रखना है जो LND है एक्चुअली लीव नॉट ड्यू, बेसिकली इन योर अकाउंट एनी लीव इज नॉट अवेलेबल एंड यू कैन अप्लाई LND. और इन फ्यूचर जो भी आपको HPL आपका खाते में क्रेडिट होगा उसी HPL से LND डेबिट होगा, राइट. और एंटायर सर्विस में 360 डेज ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट. सेकेंड स्टेटमेंट में दिया है विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट. नहीं, LND जो लीव नॉट ड्यू, इट मीन्स लीव अथॉरिटी सैंक्शन करता है विथ मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है. तो सेकेंड स्टेटमेंट गलत है. नेक्स्ट वन में अभी बताया, लीव नॉट ड्यू शैल बी लिमिटेड. अच्छा, आपको आगे में फ्यूचर में जितना HPL मिलेगा उतना ही आप अभी LND ले सकते हो, क्योंकि अभी आप LND लोगे मगर फ्यूचर में जो HPL आपका अकाउंट में क्रेडिट होगा उसी से ही ये LND को डेबिट किया जाएगा. तो आप LND कितना ले सकते हो, जो आगे में, जो फ्यूचर में जितना HPL आपको मिलेगा उससे ज्यादा नहीं. तो वही दिया है, लीव नॉट ड्यू शैल बी लिमिटेड टू द हाफ पे लीव ही इज लाइकली टू अर्न देयर आफ्टर. ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है. तो यहां पर करेक्ट स्टेटमेंट दिया है, तो 1 and 3 both the statements, you know, 1 and 3 both the statements are correct one, right. Second statement is wrong one, right. तो आगे में पूरा डिस्कस करेंगे LND के ऊपर. क्वेश्चन नंबर 2, again two statements given, you detect the incorrect statement, right. First statement, where a government servant who has been granted LND resigns from service
or at his request permitted to retire voluntarily without returning to duty, the leave not due shall be cancelled. His resignation retirement taking effect from the date on which such leave had commenced and the leave salary shall be recovered. ये स्टेटमेंट करेक्ट है. सपोज आप एलएनडी लेकर गया, लीव नॉट ड्यू लेकर गया, मगर आप जॉब क्विट कर दिया, कि जॉब रेजिग्नेशन दे दिया, कि वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट दे दिया. इट मीन्स आप रिटर्न नहीं किया ड्यूटी को. ठीक है, एलएनडी लेकर गया, आपका खाते में कोई भी लीव नहीं था, तो आप एलएनडी लिया, क्योंकि आगे में जो फ्यूचर में जो एचपीएल क्रेडिट होगा उसी से ही, जो हाफ पे लीव क्रेडिट होगा उसी से ही जो एलएनडी अभी लिया है वो एडजस्ट होगा. मगर आप एलएनडी लेकर गया, आप जॉब रिजाइन कर दिया, सर्विस को रिजाइन कर दिया, कि क्विट कर दिया, कि वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट ले लिया, तो इस केस में क्या होगा? तो इस केस में क्या होगा, आपका एलएनडी को कैंसिल कर दिया जाएगा, और जिस डेट से आपका एलएनडी लीव नॉट ड्यू कमेंस हुआ उसी डेट से आपका रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट कर दिया जाएगा, कि आपका रिटायरमेंट को एक्सेप्ट कर दिया जाएगा, और जो आपको लीव सैलरी मिला है वो भी रिकवरी होगा. आप याद रखिए, आप रिटर्न नहीं किया एलएनडी लेकर, तब इमीडिएटली क्या किया जाएगा ना, जिस डेट से आपका एलएनडी स्टार्ट हुआ था, लीव नॉट ड्यू जिस डेट से स्टार्ट हुआ था उसी डेट से आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो जाएगा, और कि आपका जो वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट आप ले लिया, तो उसी डेट से, जिस डेट में आपका एलएनडी कमेंस हुआ, स्टार्ट हुआ, उसी डेट से रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो जाएगा और आपका वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट एक्सेप्ट हो जाएगा, और जो भी आप लीव सैलरी लिया है वो भी रिकवर होगा. ये करेक्ट है. सेकंड स्टेटमेंट क्या है, वेयर ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैविंग अवेल्ड हिमसेल्फ ऑफ लीव नॉट ड्यू रिटर्न्स टू ड्यूटी but resigns or retires from service before he has earned such leave, he shall be liable to refund the leave salary to the extent the leave has not been earned subsequently. Suppose for example आप अभी एलएनडी 20 लेकर गया, ठीक है, आप रिटर्न आ गए, क्योंकि एलएनडी जो आपका खाते में कोई लीव नहीं था, तो आप रिटर्न आ गए, सर्विस ज्वाइन कर लिए, और उसके बाद सपोज आपका 10 एचपीएल क्रेडिट हुआ, ठीक है, 10 एचपीएल क्रेडिट हुआ, तो ये 10 एचपीएल एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि एलएनडी 20 लिया है, तो फ्यूचर में जो एचपीएल क्रेडिट होगा तो उसी से एलएनडी को एडजस्ट किया जाएगा. तो आपका ज्वाइन करने के बाद 10 एचपीएल क्रेडिट हुआ, उसके बाद आप रिजाइन दे दिया, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, तो आप एलएनडी 20 लिया था, ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन करने के बाद 10 एचपीएल क्रेडिट हुआ, तो जो एलएनडी 20 लिए थे उससे वो एडजस्ट हो गया, क्योंकि एलएनडी जो हम लेंगे वो फ्यूचर में जो भी एचपीएल मिलेगा उससे एडजस्ट होगा, तो 10 एचपीएल से एडजस्ट हो गया, मगर और 10 एलएनडी रह गया नहीं की, तो आप रिजाइन दे दिए, तो उस केस में क्या होगा, ये जो 10 एनएलडी जो लीव नॉट ड्यू के लिए जो आप लीव सैलरी लिए थे उसको आपसे रिकवरी किया जाएगा. राइट, वही दिया है. तो आगे में जो जितना एचपीएल आपका खाते में क्रेडिट होगा उससे एलएनडी एडजस्ट होगा. एडजस्ट नहीं हो पाया तो जैसे मेरा एग्जांपल में 10 एलएनडी एडजस्ट नहीं हुआ, तो 10 एलएनडी का जो लीव सैलरी आप लिया है आपसे रिकवर कर दिया जाएगा. तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है. तो ये इनकरेक्ट पूछा है, मगर ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ऑप्शन डी इज द आंसर. ऑप्शन डी इज द आंसर, राइट, नन ऑफ द अबव. समझ में आ गया? चलो क्वेश्चन नंबर 3, CCS लीव रूल्स 1972 shall not apply to a person serving under central government on deputation from a state government. 4 options are there for the rest of his service, for a limited duration, from the date of his joining state government, none of the above. आप जानते हो, सपोज कोई स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई डेपुटेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट आ गया, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई डेपुटेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट को आ गया, डेपुटेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट को आ गया, ठीक है, बट वो लिमिटेड पीरियड के लिए आता है. तो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई जब सेंट्रल गवर्नमेंट को डेपुटेशन में आएगा तो उसके लिए सीसीएस लीव रूल्स 1972 लागू नहीं होगा. तो ये जो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट में डेपुटेशन में काम कर रहा है वो लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए काम कर रहा है. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. और उसको उसके लिए
सीसीएस लीव रूल्स 1972 एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि लिमिटेड पीरियड के बाद वो फिर उसका पेरेंट डिपार्टमेंट स्टेट गवर्नमेंट को रिटर्न कर जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 4, अगेन यू सी which of the below is or are incorrect about LND लीव नॉट ड्यू के ऊपर इनकरेक्ट स्टेटमेंट हम डिटेक्ट करेंगे। 4 स्टेटमेंट्स गिवन। LND may be granted to a permanent government servant with no हाफ पे लीव एट क्रेडिट, ये ठीक है। आपको आपका अकाउंट में कोई HPL नहीं है, आपका अकाउंट में HPL नहीं है, तो आप LND ले रहे हो, तो फ्यूचर में जो आपका खाते में HPL क्रेडिट होगा उसी से ही जो अभी आप LND ले रहे हो वो एडजस्ट होगा। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अभी आपका खाते में HPL नहीं है, आप LND ले रहे हो, फ्यूचर में जो HPL क्रेडिट होगा उसी से LND, ये जो अभी जो LND ले रहे हो लीव नॉट ड्यू, वो एडजस्ट होगा। करेक्ट है। नेक्स्ट वन, टेम्पररी ऑफिशियल्स विथ ए मिनिमम ऑफ 1 year सर्विस and suffering from tuberculosis, leprosy, cancer, mental illness may be granted LND if the post for which the official proceeds on leave is likely to last till his return। तो ये ठीक है। टेम्पररी ऑफिशियल्स उसका 1 year सर्विस कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि मिनिमम ऑफ 1 year सर्विस होना चाहिए। टेम्पररी ऑफिशियल टेम्पररी काम कर रहा है और मिनिमम 1 year सर्विस वो काम कर चुका है एंड ही इज सफरिंग इन सपोज इन टीबी, लेप्रोसी, कैंसर, मेंटल इलनेस। इन दिस केस उसको LND ग्रांट होगा। ठीक है, LND ग्रांट होगा इफ द पोस्ट फॉर विच द ऑफिशियल प्रोसीड ऑन लीव इज लाइकली टू लास्ट टिल हिज रिटर्न। राइट, तो ये सेंटेंस भी करेक्ट है। LND कैन बी ग्रांटेड विदाउट ए मेडिकल सर्टिफिकेट टू ए फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट with less than 2 living children on the adoption of a child। चाइल्ड अडॉप्शन लीव में आप देख लीजिए तो चाइल्ड जो अडॉप्ट होता है वो लेस देन 1 year होता है। चाइल्ड अडॉप्ट जो होता है वो लेस देन 1 year होता है। चाइल्ड को अडॉप्ट किया गया, सपोज अभी चाइल्ड को 2 months है, आप चाइल्ड को अडॉप्ट कर लिया, तो इसमें क्या होगा, जिस डेट में आप चाइल्ड अडॉप्ट किया, इट मीन्स अभी तो है एक चाइल्ड को फोस्टरिंग केयर, आप अभी अडॉप्ट नहीं किया है मगर केयर कर रहे हो, अडॉप्ट कंप्लीटली अडॉप्ट नहीं किया है, तो जिस डेट से आप केयर ले रहे हो चाइल्ड का उसी डेट से इट मीन्स मान लिया जाएगा आपको चाइल्ड अडॉप्शन लीव 180 days मिलेगा। 180 days चाइल्ड अडॉप्शन लीव मिलेगा, मगर उसके साथ आप LND भी ले सकते हो, मैंने कंटिन्यू कर सकते हो। 180 days के बाद आप कंटिन्यू कर सकते हो, LND ले सकते हो लीव नॉट ड्यू। तो फ्यूचर में जो आपका HPL मिलेगा उससे LND को एडजस्ट किया जाएगा। मगर अभी 2 months है, मीन्स एक्चुअली 1 year तक, अप टू 1 year तक आप ले सकते हो, 8 months। इट मीन्स दिया है, सपोज कोई चाइल्ड बॉर्न हो गया, आप अडॉप्ट कर लिया और 180 days आप ले लिया और 1 year तक आप ले सकते हो और उसमें आप LND ले सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो। चाइल्ड अडॉप्शन लीव 180 days है, एक्चुअली जो चाइल्ड अडॉप्शन लीव है वो 180 days है और उसके साथ आप कंबाइन कर सकते हो, आप LND ले सकते हो, उसके बाद उसके साथ कंबाइन कर सकते हो अप टू 1 year। 1 year के चाइल्ड को जब 1 year क्रॉस हो जाएगा आप नहीं ले सकते। जैसे 2 months है अभी, आप 8 months तक जाएगा। ठीक है, 8 months तक आप 108 days हो गया और उसके बाद आप LND कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये भी करेक्ट है। LND ड्यूरिंग द एंटायर सर्विस इज लिमिटेड टू ए मैक्सिमम ऑफ 180 days। मैं अभी बताया था, पूरा एंटायर सर्विस में जो LND मिलेगा वो 360 days मिलेगा। अभी मैं बताया था एंटायर सर्विस कैरियर में एम्प्लॉई कैन टेक 360 days LND, मगर यहां पर 180 दिया है, तो ये ओनली 4th स्टेटमेंट गलत है। फर्स्ट 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट वन, ओनली 4th स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट वन। तो इनकरेक्ट पूछा है, तो आप आंसर इज ऑप्शन सी, राइट। चलो नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5, इट इज वेरी इजी वन। LND ड्यूरिंग द एंटायर सर्विस इज लिमिटेड टू ए मैक्सिमम ऑफ, ये तो बहुत इजी है, 360 days। एंटायर सर्विस में एक एम्प्लॉई 360 days LND ले सकता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलो अभी हम पूरा LND के ऊपर डिस्कस करेंगे। जो रूल 31 है, CCS लीव रूल्स 1972 रूल 31, वो LND है, लीव नॉट ड्यू है। फर्स्ट वन,
सेव इन द केस ऑफ लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट, आप जानते हो जो लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट आप 300 डेज ले सकते हो, ओनली ईएल प्लस एचपीएल दोनों मिलाकर 300 डेज आप लोगे। तो यहां पर आपको एलएनडी इट मींस आप अवेल नहीं कर सकते, ओनली ईएल एंड एचपीएल मैक्सिमम 300 डेज आप लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वन, लीव नॉट ड्यू मे बी ग्रांटेड टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट इन परमानेंट एम्प्लॉय और क्वासी परमानेंट। क्वासी परमानेंट क्या है, आप काम कर रहे हो, पूरा परमानेंट नहीं हुआ है आपका जॉब, मगर परमानेंट होगा आगे में। नाउ यू आर वर्किंग बट it is expected that in future the concerned employee would be permanent one, quasi permanent employee। मिलिट्री ऑफिसर के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। लिमिटेड टू ए मैक्सिमम ऑफ 360 डेज ड्यूरिंग द एंटायर सर्विस। एंटायर सर्विस में आप 360 डेज एलएनडी ले सकते हो, मगर मेडिकल सर्टिफिकेट, ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट। ठीक है, मेडिकल सर्टिफिकेट देकर आप एंटायर सर्विस में 360 डेज एलएनडी ले सकते हो, लीव नॉट ड्यू ले सकते हो। राइट, फर्स्ट हो गया क्लियर। चलो सेकंड स्टेटमेंट, द अथॉरिटी, ये जो कंडीशंस है बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 कंडीशंस। ये बेसिकली आपको याद रखना है कि जो रूल 31(1) ये बोलता है कि एंटायर, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, रूल 31 सबसेक्शन 1 ऑफ सीसीएस लीव रूल्स 1972, ये जो है रिलेटेड टू द कि एंटायर सर्विस द कंसर्न एम्प्लॉई कैन टेक एलएनडी ओके ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट। तो उसमें 3 कंडीशन है। एक है देखिए कि 31 सबसेक्शन 1 एंड बिट ए, इसमें क्या दिया है कि अथॉरिटी, जो लीव अथॉरिटी है वो कंफर्म है कि जो कंसर्न एम्प्लॉई को एलएनडी ग्रांट किया जा रहा है वो ड्यूटी को रिटर्न आ जाएगा। तो अथॉरिटी मस्ट कॉन्फिडेंट, द अथॉरिटी मस्ट कॉन्फिडेंट दैट इट मींस द कंसर्न एम्प्लॉई विल रिटर्न बैक, ओके, विल रिटर्न बैक एंड एज यूजुअल मैनर डू द ड्यूटी। तो वही दिया है फर्स्ट वन, द अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू ग्रांट लीव इज सैटिस्फाइड दैट देयर इज रीजनेबल प्रोस्पेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट रिटर्निंग टू ड्यूटी ऑन इट्स एक्सपायरी। ठीक है, सेकेंड वन, लीव नॉट ड्यू शैल बी लिमिटेड। तो आगे में ये है कि अभी आपका अकाउंट में कोई लीव नहीं है, अभी आपका अकाउंट में एचपीएल नहीं है, ठीक है, तो आपको एलएनडी ग्रांट किया गया मेडिकल सर्टिफिकेट में। तो ये कंडीशन है कि फ्यूचर में जितना एचपीएल आपका खाते में क्रेडिट होगा उतना ही एलएनडी आपको सैंक्शन किया जाएगा। अभी एक्सपेक्टेड है कि आगे में इतना उसका खाते में एचपीएल क्रेडिट होगा, तो उतना ही एलएनडी अभी सैंक्शन होगा। सपोज अभी लीव अथॉरिटी एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपको फ्यूचर में 60 एचपीएल मिलेगा, तो अभी वो 60 एलएनडी सैंक्शन करेगा, क्योंकि फ्यूचर में जो एचपीएल मिलेगा उससे ही लीव नॉट ड्यू को एडजस्ट किया जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट जो बिट सी है, ये जो है ये था 31 सबसेक्शन 1 बिट बी, और 31 सबसेक्शन 1 बिट सी में क्या दिया है कि लीव नॉट ड्यू शैल बी डेबिटेड। अभी जो बताया, तो अभी एलएनडी लो मेडिकल सर्टिफिकेट में, फ्यूचर में वो जो एचपीएल क्रेडिट होगा आपका खाते में उससे ही एडजस्ट उसको किया जाएगा। ठीक है, ये 3 जो रूल्स है 31(1)A, 31(1)B, 31(1)C बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको रिमेंबर कीजिए, इसके रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है। चलो नेक्स्ट वन, एलएनडी फॉर टेम्पोररी गवर्नमेंट सर्वेंट्स। यहां पर टेम्पोररी देखेंगे, ये है जो टेम्पोररी के ऊपर है 31 रूल 31 1A सबसेक्शन 1A, ठीक है, इसमें दिया है एलएनडी फॉर टेम्पोररी गवर्नमेंट सर्वेंट। लीव नॉट ड्यू may also be granted to such of the temporary government servants as are suffering from TB, leprosy, cancer or mental illness for a period not exceeding 360 days during entire service, subject to fulfillment of conditions clauses A to C of sub rule 1 and subject to the following conditions। और ये भी दिया है टेम्पररी गवर्नमेंट सर्वेंट जब सफर हो रहा है, सपोज द टेम्पररी गवर्नमेंट सर्वेंट इज सफरिंग इन ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी, कैंसर, मेंटल इलनेस, उसको भी एंटायर सर्विस कैरियर में वो
360 डेज तक उसको एलएनडी मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। और वही 3 जो सबसेक्शन 1 में 3 चीज था कि द लीव अथॉरिटी सर्टिस्फाइड दैट द कंसर्न एम्प्लॉय विल रिटर्न बैक एंड डू द ड्यूटी आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द लीव। सेकेंड वन, इट मीन्स फ्यूचर में जितना एचपीएल क्रेडिट होगा उतना ही अभी एलएनडी सैंक्शन होगा, कि लीव अथॉरिटी एक्सपेक्ट कर रहा है कि इतना ही एचपीएल फ्यूचर में क्रेडिट होगा तो उतना ही एलएनडी सैंक्शन होगा। और थर्ड में बताया था कि अभी जो आप एलएनडी ले रहे हो, जो फ्यूचर में जो एचपीएल मिलेगा उससे ही वो एडजस्ट किया जाएगा एलएनडी को, ठीक है। और यहां पर है दैट द गवर्नमेंट सर्वेंट हैज पुट इन ए मिनिमम, यहां पर कंडीशन दिया है, देखिए मिनिमम 1 ईयर सर्विस। ओके, जो टेम्पररी गवर्नमेंट सर्वेंट है that he must complete 1 year service, then he can avail LND for different type of diseases. ओके, ये कंडीशन है, मिनिमम 1 ईयर सर्विस कंप्लीट करना चाहिए। नेक्स्ट क्या है ना, दैट द पोस्ट फ्रॉम इज द गवर्नमेंट सर्वेंट प्रोसीड्स ऑन लीव इज लाइकली टू लास्ट टिल हिज रिटर्न टू ड्यूटी। ओके, वो दैट द पोस्ट फ्रॉम इज द गवर्नमेंट सर्वेंट प्रोसीड्स ऑन लीव इज लाइकली टू लास्ट, क्योंकि तब तक रिटर्न किया जाएगा, इट मीन्स उसको वेट किया जाएगा कि वेट नहीं कर रहा है तो वो ऑटोमेटिकली वो पोस्ट क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो और किसको दे दिया जाएगा, ठीक है। तो दैट द पोस्ट फ्रॉम इज द गवर्नमेंट सर्वेंट प्रोसीड्स ऑन लीव इज लाइकली टू लास्ट टिल हिज रिटर्न टू ड्यूटी। नेक्स्ट वन, दैट द रिक्वेस्ट फॉर ग्रांट, अच्छा ये जो रिक्वेस्ट है मेडिकल सर्टिफिकेट, तो यहां पर आपको याद रखना है जो टेम्पररी गवर्नमेंट सर्वेंट बेसिकली सफरिंग इन टीबी, लेप्रोसी, मेंटल इलनेस, तो एंटायर सर्विस में उसको 360 डेज एलएनडी मिलेगा। और वो जो बाकी जो कंडीशंस 3 कंडीशंस में बता दिया, और इसमें है उसको मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। और नेक्स्ट है वो मिनिमम 1 ईयर सर्विस कंप्लीट करना चाहिए, ऐसे नहीं मिलेगा, मिनिमम 1 ईयर सर्विस कंप्लीट करेगा तब उसको एलएनडी ग्रांट किया जाएगा और मेडिकल सर्टिफिकेट देगा, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट अभी चलेंगे रूल 31, रूल 31 राइट, सबसेक्शन 2A को चलेंगे, ठीक है। फिर ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैज बीन ग्रांटेड लीव नॉट ड्यू रिजाइन्स, हाँ इसके ऊपर बता देता हूं, मैं बताया था अभी, एलएनडी लिया, एलएनडी सपोज इसी डेट में ले लिया, सपोज एलएनडी ले लिया इसी डेट में एलएनडी लिया है मगर भी रिटर्न नहीं आया, द कंसर्न एम्प्लॉई द कंसर्न लीव नॉट ड्यू ऑफ द कंसर्न एम्प्लॉई कमेंस्ड फ्रॉम दिस डेट, ठीक है, बट द एम्प्लॉई रिजाइन एंड इट मीन्स voluntarily retired from the job and he is not returning back and join the duty, वो अभी रिजाइन दे दिया, एलएनडी लेकर गया, अभी रिजाइन दे दिया, वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट ले लिया, वो अभी ड्यूटी को नहीं आया, तो इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में क्या होगा ना, जिस डेट में इसी डेट से एलएनडी कमेंस हुआ था तो इसी डेट से उसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर दिया जाएगा और उसका वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट को एक्सेप्ट कर दिया जाएगा और जितना लीव सैलरी उसको मिला था रिकवरी कर दिया जाएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, ये रूल को भी याद रखिए, सेक्शन को, क्लियर हो गए। नेक्स्ट इसमें क्या है, एलएनडी लिया, अभी मैं बताया था इसको, सपोज एलएनडी 20 डेज लिया और आफ्टर एक्सपायरी ऑफ एलएनडी लीव नॉट ड्यू वो ज्वाइन किया ड्यूटी में, तो ज्वाइन करने के बाद उसको 10 एचपीएल उसका खाते में क्रेडिट हो गया, तो ये 10 एचपीएल में एडजस्ट हो गया क्योंकि एलएनडी 20 डेज लिया था, तो उसका लीव नॉट ड्यू एक्सपायरी हो गया, वो आकर ड्यूटी ज्वाइन कर लिया, ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद 10 एचपीएल उसका खाते में क्रेडिट हुआ, तो अभी एलएनडी कितना बचा, अभी एलएनडी बचा है 10, मगर वो रिजाइन दे दिया कि वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट ले लिया। इस केस में क्या होगा ना, जो एलएनडी 10 अभी बचा है ना, तो उसके ऊपर जो वो लीव सैलरी लिया था उतना लीव सैलरी को रिकवरी कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी भी एलएनडी 10 बचा है, ठीक है, अभी वो रिजाइन दे दिया, वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट ले लिया, तो ये जो एलएनडी
10 के लिए जो लीव सैलरी लिया था उसे रिकवरी कर दिया जाएगा। मगर ये कब नहीं होगा, जब ये कंडीशन में देखिए, प्रोवाइडेड दैट नो लीव सैलरी शैल बी रिकवर्ड फ्रॉम क्लॉज ए और क्लॉज बी इफ द रिटायरमेंट इज बाय रीजन ऑफ इल हेल्थ। सपोज आप एलएनडी लेकर गया मगर ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर पाया ड्यू टू इल हेल्थ, इनकैपेसिटेटिंग द गवर्नमेंट सर्वेंट फॉर फर्दर सर्विस, इस केस में, और इन द इवेंट ऑफ हिज डेथ, ये दो केस में, सपोज ड्यू टू इलनेस एंड इनकैपेसिटेटिंग द गवर्नमेंट सर्वेंट फॉर फर्दर सर्विस और इन द इवेंट ऑफ हिज डेथ, वो एलएनडी लेकर गया मगर ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर पाया और वो फिट भी नहीं है ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए कि उसका डेथ हो गया, तो इस केस में उसको जो लीव सैलरी मिला है वो रिकवरी नहीं किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन, प्रोवाइडेड दैट इस केस में नो लीव सैलरी शैल बी रिकवर्ड। सपोज आप एलएनडी लेकर गया और एलएनडी के टाइम में आपको कंपल्सरी रिटायर कर दिया गया, कंपल्सरी रिटायरमेंट दे दिया गया प्री मैच्योर अंडर, ये जो है पेंशन वाला जो ओल्ड पेंशन है, सीसीएस पेंशन रूल्स 2021, जो पहले था सीसीएस पेंशन रूल्स 1972, ठीक है, तो उनके लिए है, आपको एलएनडी लेकर आप गए और उसी पीरियड में आपको कंपल्सरी रिटायर कर दिया गया अंडर रूल 48(1)(b ऑफ द सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स 1972 और 56J फंडामेंटल रूल। फंडामेंटल रूल 56J क्या है कि आप 35 इयर्स, सपोज बिफोर 35 इयर्स यू ज्वाइन द जॉब, ठीक है, तो जब आपको 50 इयर्स हो गया उसके बाद सपोज आपको गवर्नमेंट वॉलंटरी रिटायरमेंट दे दिया, और 56J क्या बोल रहा है कि सपोज आप गवर्नमेंट जब 35 इयर्स के बाद ज्वाइन किया तब आपको वॉलंटरी रिटायरमेंट दिया जा सकता है आफ्टर 55 इयर्स, और ये बेसिकली ग्रुप ए एंड बी, ग्रुप ए एंड बी, ठीक है। 56 समझ में आ गया, फंडा एफआर 56J, इसमें क्या है, दोज एम्प्लॉइज ज्वाइन द जॉब बिफोर 35 इयर्स they can get in public interest they can get voluntary retirement after 50 years by giving 3 months notice। यदि 3 months notice आप नहीं मान रहे हो तो 3 months सैलरी दे दो, और those employees actually joined the job after 35 years age then in public interest they can get voluntary retirement after 55 years, ठीक है, और भाई 3 months notice otherwise pay 3 months सैलरी, ये ग्रुप ए बी के लिए। और एक है अंडर फंडामेंटल रूल 56L, ये 56L क्या है, जो ग्रुप सी के लिए है, ये ग्रुप सी के लिए जिनके लिए पेंशन फैसिलिटीज नहीं है और 30 इयर्स के बाद आफ्टर 30 इयर्स ओके उनको वॉलंटरी रिटायरमेंट दे दिया जाएगा, उनके लिए पेंशन नहीं है। 56L में बता रहा है जो ग्रुप सी एम्प्लॉइज है, ग्रुप सी एम्प्लॉइज है उनका पेंशन नहीं है और वो 30 इयर्स काम करने के बाद उनको वॉलंटरी रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। तो आप एलएनडी लेकर गया तो आपको सपोज कंपल्सरी रिटायर कर दिया गया कि वॉलंटरी रिटायरमेंट दे दिया गया, तो इस केस में आपको जो लीव सैलरी मिला ना वो रिकवरी नहीं होगा, ठीक है, वो रिकवरी नहीं होगा, ये थोड़ा अच्छे से देख लीजिए। नेक्स्ट वन मेडिकल सर्टिफिकेट के ऊपर आएंगे। ऐसा कुछ केस है कि हम जानते हैं कि एलएनडी जब लीव नॉट ड्यू ले रहे हो ना मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, ठीक है, लीव नॉट ड्यू सैंक्शन बाय द लीव अथॉरिटी ओनली ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट। मगर कुछ ऐसा केस है जो मेडिकल सर्टिफिकेट आपको देना नहीं पड़ेगा, मेडिकल सर्टिफिकेट देना नहीं पड़ेगा। क्या है ना, फीमेल एम्प्लॉइज अप्लाइंग फॉर एलएनडी इन कंटिन्यूएशन ऑफ मैटरनिटी लीव। आप जानते हो मैटरनिटी लीव 180 डेज है, आप ले सकते हो मैटरनिटी लीव 180 डेज, तो उसके साथ आप एलएनडी कंटिन्यू कर सकते हो विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट, विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट। तो आगे में जो एचपीएल मिलेगा ये एलएनडी को एडजस्ट किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन चाइल्ड अडॉप्शन के ऊपर अभी मैं बताया था, चाइल्ड अडॉप्शन लीव, जिस डेट में आप चाइल्ड को अडॉप्ट किया तो आपको 180 डेज चाइल्ड अडॉप्शन लीव मिलेगा, मगर अप टू 1 ईयर ऑफ द चाइल्ड, अप टू 1 ईयर। जैसे अप टू 1 ईयर क्या है, जैसे अभी चाइल्ड को 4 मंथ से आप अडॉप्ट किया तो आपको जो मिलेगा 6 मंथ्स के अंदर आपको लेना है, 6 मंथ्स के अंदर क्या है आपको ये 180 डेज प्लस आप एलएनडी भी ले सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो एलएनडी। मगर
ये जो आप लेना है अप टू 1 ईयर ऑफ द चाइल्ड, 1 ईयर से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है, इस केस में भी आप ले सकते हो। थर्ड वन, आप सीसीएल लिया है, चाइल्ड केयर लीव लिया है। चाइल्ड केयर लीव एंटायर सर्विस में जो वोमेन एम्प्लॉय को मिलता है 730 डेज, और उसके साथ भी आप एलएनडी कंटिन्यू कर सकते हो, ले सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है, विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट। चाहे चाइल्ड अडॉप्शन लीव हो, चाहे मैटरनिटी लीव हो, चाहे सीसीएल हो, आप उसके साथ एलएनडी को कंबाइन कर सकते हो। ओके, देयर इज कंटिन्यूएशन, ओके, कंटिन्यूएशन ऑफ लीव विथ एलएनडी बट विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट। यहां पर मेडिकल सर्टिफिकेट देना नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्लियर। चलो ठीक है, नेक्स्ट वन, कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव के ऊपर देखेंगे, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट्स इज और आर इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट को देखेंगे, इस तरीके का क्वेश्चन पैटर्न अभी है। फर्स्ट वन, ग्रांटेड व्हेन नो अदर लीव इज, ये ईओएल है, प्लीज सॉरी, ये फर्स्ट जो स्टेटमेंट है ईओएल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, ईओएल ग्रांटेड व्हेन नो अदर लीव इज एडमिसिबल। भाई आपका कोई लीव नहीं है तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव लोगे, ईओएल लोगे, ये ठीक है, ये स्टेटमेंट ठीक है। कोई लीव नहीं है तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव लो और विदाउट पे, ठीक है। नेक्स्ट वन, ग्रांटेड व्हेन अदर लीव इज एडमिसिबल, अदर लीव है, व्हेन अदर लीव इज एडमिसिबल बट गवर्नमेंट सर्वेंट अप्लाइज राइटिंग फॉर यूएल। आपका सपोज ईएल है कि सीएल है, मगर आप अभी यूएल लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव में विदाउट पे आपको सैलरी नहीं मिलेगा, ठीक है, मगर कुछ केस में आप ईओएल लोगे, सैलरी मिलेगा। जैसे स्टडी टाइम में, स्टडी पर्पज के लिए आप पब्लिक इंटरेस्ट में प्रोसिक्यूटिंग स्टडी फॉर साइंटिफिक स्टडी की टेक्निकल स्टडी केस में आप कंटिन्यू करोगे, वहां पर 24 मंथ्स का ईओएल सैंक्शन होगा और वहां पर सैलरी मिलेगा। मगर यहां पर क्या है, आपका सीएलईएल है, एचपीएल है, मगर आप ईओएल लेना चाहते हो तो आपको मिल सकता है, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड है, कैन बी अवेल्ड कंकरेंटली ड्यूरिंग द नोटिस पीरियड व्हेन गोइंग ऑन वीआरएस। आप वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट लेना चाहते हो तो आप नोटिस दे दिया, जो वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट के लिए आप नोटिस दिया है उस नोटिस पीरियड में आपको ईओएल नहीं मिलेगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव आपको नहीं मिलेगा। मगर यहां पर कैन बी अवेल्ड, ये स्टेटमेंट गलत है। जो वीआरएस के लिए आप नोटिस पीरियड है ना, चाहे 3 मंथ्स का नोटिस पीरियड है आप दिया है, तो नोटिस पीरियड में आप कभी भी ईओएल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव नहीं ले सकते। तो मगर ये जो स्टेटमेंट दिया है कैन बी अवेल्ड दिया है, नो, ये गलत है, थर्ड स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट वन, ईओएल इज ग्रांटेड फॉर ए कंटिन्यूअस पीरियड एक्सीडिंग 5 ईयर्स। नो, कोई भी लीव ऐसा 5 ईयर्स क्रॉस नहीं करेगा, क्योंकि 5 ईयर्स क्रॉस करता है तो ये मान लिया जाएगा कि द कंसर्न एम्प्लॉय रिजाइन फ्रॉम द जॉब, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो आप रूल 12 देख लीजिए, इसको रूल 12 देख लीजिए, ये क्लियरली दिया है, अप टू 5 ईयर्स, एक्सीडिंग नहीं होगा 5 ईयर्स, ठीक है, ये भी गलत है। तो इनकरेक्ट दिया है, तो अभी आपको आंसर मिल गया, स्टेटमेंट 3 और स्टेटमेंट 4 बोथ आर इनकरेक्ट वन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 अगेन दिया है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, चेक करेंगे हम। 4 स्टेटमेंट्स गिवन, ऑल ऑफिशियल्स अप टू 3 मंथ्स विथ और विदाउट ए मेडिकल सर्टिफिकेट, ये ठीक है। 3 मंथ्स के लिए, सबके लिए, चाहे टेम्पोररी हो कि परमानेंट हो, आप 3 मंथ्स लीव ले सकते हो, जो ईओएल ले सकते हो, चाहे मेडिकल सर्टिफिकेट दे सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑफिशियल्स विथ ए मिनिमम 1 ईयर कंटिन्यूअस सर्विस अप टू 6 मंथ्स विथ ए मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है, ये बेसिकली जो दिया है टेम्पोररी गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए, आगे में देखेंगे, तो आपका मिनिमम 1 ईयर सर्विस है, कंप्लीट हो चुका है, ऑलरेडी यू हैव कंप्लीटेड 1 ईयर सर्विस, तो आपको 6 मंथ्स तक यूएल मिलेगा मेडिकल सर्टिफिकेट में। नेक्स्ट वन, अप टू 18 मंथ्स विथ मेडिकल सर्टिफिकेट, कब, वेयर द गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैज कंप्लीटेड 1 ईयर कंटिन्यूअस सर्विस, आपका कंटिन्यूअस सर्विस 1 ईयर कंप्लीट हो चुका है और आप मेडिकल सर्टिफिकेट देकर 18 मंथ्स यूएल लोगे, मगर कंडीशन क्या है, व्हेन द सर्वेंट इज सफरिंग इन कैंसर, मेंटल इलनेस, ट्यूबरकुलोसिस एंड लेप्रोसी, ठीक है, आपका सर्विस 1 ईयर कंप्लीट हो चुका है और आप मेडिकल सर्टिफिकेट देकर अप टू 18 मंथ्स ईओएल ले सकते हो, मगर इस केस में
इफ द एम्प्लॉय सफरिंग इन कैंसर, मेंटल इलनेस, टीबी एंड लेप्रोसी। ये ठीक है, ठीक है। फर्स्ट थ्री स्टेटमेंट्स करेक्ट वन। ऑफिशियल्स विथ 3 or more years of continuous service up to 36 months for prosecuting studies to be in public interest। नहीं, ये 36 नहीं, 24 months। सपोज आप पब्लिक इंटरेस्ट में आप कोई साइंटिफिक स्टडी करना चाहते हो, तो पब्लिक इंटरेस्ट में आपको अलाउ किया गया, और वहां पर कंडीशन है कि आपका 3 ईयर, मिनिमम 3 इयर्स सर्विस कंप्लीट हो चुका है, मिनिमम 3 इयर्स सर्विस कंप्लीट हो चुका है, और पब्लिक इंटरेस्ट में आपको साइंटिफिक स्टडी करना है, तो इस केस में आपको यूएल मिलेगा 24 मंथ्स के लिए। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। फर्स्ट थ्री स्टेटमेंट्स करेक्ट है, फोर्थ स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे में पूरा एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव को हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 8, अगेन अनदर क्वेश्चन, करेक्ट स्टेटमेंट देखेंगे, ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट, अगेन 3 स्टेटमेंट्स गिवन। गवर्नमेंट सर्वेंट इज ग्रांटेड एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव फॉर 24 months फॉर द पर्पज ऑफ प्रोसिक्यूटिंग स्टडीज सर्टिफाइड टू बी इन पब्लिक इंटरेस्ट। ये करेक्ट है। ये इसमें क्या है, आपका मिनिमम सर्विस 3 इयर्स कंप्लीट हुआ है, मिनिमम सर्विस 3 इयर्स कंप्लीट हुआ है, और पब्लिक इंटरेस्ट में आपको साइंटिफिक स्टडी करना है कि कोई टेक्निकल स्टडी करना है, तो इस केस में आपको 24 मंथ्स के लिए, 24 मंथ्स के लिए यूएल दिया जाएगा, ठीक है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव दिया जाएगा विदाउट एनी मेडिकल सर्टिफिकेट। यहाँ पर मेडिकल सर्टिफिकेट कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट में आपको स्टडी करना है फॉर पर्पज ऑफ स्टडी। आपको 24 मंथ्स, यहाँ पर 24 मंथ्स ये यूएल सैंक्शन होगा, जिसमें आपको सैलरी भी मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये करेक्ट है। द गवर्नमेंट सर्वेंट कंसर्न्ड हैज कंप्लीटेड 3 इयर्स कंटिन्यूअस सर्विस, ये भी ठीक है। ये जो 24 मंथ्स का यूएल मिलेगा फॉर स्टडी, तो इस केस में क्या होगा ना, आप मिनिमम 3 इयर्स सर्विस कंप्लीट करना है, ठीक है, ये भी ठीक है। नेक्स्ट वन, वेयर ए गवर्नमेंट सर्वेंट इज ग्रांटेड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव फॉर स्टडीज shall be required to execute a bond in Form 6, undertaking to refund to the government the actual amount of expenditure incurred by the government with interest in the event of his not returning to duty on the expiry of such leave or quitting the service before a period of 3 years after return to duty। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको अभी 24 मंथ्स का यूएल दे दिया, क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट में आपको स्टडी करना है, ठीक है। और वहां पर जो कंडीशन था कि आपका 3 ईयर सर्विस कंप्लीट होना चाहिए, 3 इयर्स कंटिन्यूअस सर्विस कंप्लीट होना चाहिए। पब्लिक इंटरेस्ट में स्टडी पर्पज के लिए आपको 24 मंथ्स यूएल मिलेगा, मगर आप रिटर्न आके मिनिमम 3 इयर्स काम करना है। स्टडी कंप्लीट हो गया, स्टडी कंप्लीट करने के बाद आप ड्यूटी आओगे, और ड्यूटी में आपको 3 इयर्स काम करना है। 3 इयर्स बिफोर आप जॉब क्विट नहीं कर सकते। तो इस केस में वही हुआ, तो रिटर्न नहीं आया, वो स्टडी लीव लेकर गया, रिटर्न नहीं आया। कि नेक्स्ट वन क्या है, रिटर्न आया, तो मैं बताया कि रिटर्न आने के बाद आपको मिनिमम 3 इयर्स काम करना है, मगर रिटर्न आया मगर मिनिमम 3 इयर्स काम नहीं किया। तो इस केस में क्या है, एक बॉन्ड आपको देना पड़ेगा, फॉर्म 6, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बॉन्ड। इसमें 2 परमानेंट एम्प्लॉइज, चाहे आपका इक्विवेलेंट हो कि यानी इट मींस कोई हायर ऑफिसर आपका हो, चाहे जो बॉन्ड जो साइन होगा, 2 परमानेंट एम्प्लॉइज दे विल साइन। तो वो जो परमानेंट एम्प्लॉइज बेसिकली बिलोंग्स टू योर इक्विवेलेंट कैडर और एनी हायर ऑफिसर ऑफ यू, ठीक है। तो 2 परमानेंट एम्प्लॉइज का साइन रहेगा। तो ये बॉन्ड में मेंशन क्या है कि आपको रिटर्न आना है और मिनिमम 3 इयर्स काम करना है। बिफोर 3 इयर्स आप काम करोगे, जो गवर्नमेंट आपके ऊपर खर्च किया है स्टडी टाइम में, उसको रिकवरी करेगा विथ इंटरेस्ट। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ठीक है। तो करेक्ट पूछा है, मींस ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। ये सब आगे में हम डिस्कस करेंगे और एक बार। चलो क्वेश्चन नंबर 9, अगेन 2 स्टेटमेंट्स दिया है ना, बोथ आर करेक्ट, इसे दिया। अच्छा, 2 spells of extraordinary leave, if intervened by any other kind of leave, shall be treated as one separate spell of extraordinary leave। ये गलत है, सेपरेट नहीं, कंटिन्यूअस होगा। क्या है मैं बता देता हूं। सपोज आप अभी 3 to 6
नवंबर आप ईओएल लिया और इसमें 2 दिन पब्लिक 7-8 नवंबर ये पब्लिक हॉलीडे हो गया, ये पब्लिक हॉलीडे हो गया। फिर आप 9-10 आप फिर ईओएल ले लिए। क्या ये एक स्पेल होगा ना 2 सेपरेट स्पेल्स होगा? 1 स्पेल हो गया 3 to 6 नवंबर यूएल हो गया और 9 to 10 यूएल हो गया। मिडिल में 7-8 नवंबर वो पब्लिक हॉलीडेज हो गया, पीएच पब्लिक हॉलीडेज हो गया। क्या ये 1 स्पेल होगा ना सेपरेट स्पेल होगा? ये जो दोनों ये एक ही स्पेल होगा, सेपरेट स्पेल नहीं होगा, ये एक ही स्पेल होगा। मगर यहां पर सेपरेट दे दिया तो ये गलत हो गया। एक ही स्पेल होगा। जो मिडिल में कोई इंटरवेनिंग हॉलीडेज आ जाता है तो एक ही स्पेल होगा। ठीक है, राइट? तो इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट स्टेटमेंट, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत हो गया। द अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू ग्रांट लीव में कम्यूट रेट्रोस्पेक्टिवली periods of absence without leave into extraordinary leave। सपोज क्या है, आप एब्सेंट हो गए। सपोज आप देखिए, एग्जांपल मैं देता हूं, आप 5 CL लिए थे, अभी 7 डेज रह गए आप, तो ये जो 2 डेज वो बेसिकली क्या हो गया, एब्सेंट हो गया, ओवरस्टे हो गया, एब्सेंट हो गया। नहीं कि आप 5 CL लिए थे, मैक्सिमम एक टाइम में 5 CL अलाउ किया जाता है, लीव अथॉरिटी सैंक्शन करता है, मगर आप 7 डेज रह गए। ओके, तो 2 डेज एब्सेंट हो गए, तो ये 2 डेज को लीव अथॉरिटी चाहेगा तो उसको ईओएल में कन्वर्ट कर देगा, वही दिया है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहां पर क्या है, बोथ आर करेक्ट वन, ये गलत है, बोथ आर करेक्ट वन गलत है, ओनली वन इज इनकरेक्ट वन, यही करेक्ट है, ओनली वन इज इनकरेक्ट वन, बोथ आर इनकरेक्ट वन, ओनली 2 इज इनकरेक्ट वन नहीं है। आंसर ऑप्शन बी है, ओनली वन इज इनकरेक्ट वन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, where a government servant is granted extraordinary leave for studies shall be required to execute a bond। मैं बताया था, आप स्टडी टाइम में पब्लिक इंटरेस्ट में आप गवर्नमेंट अलाउ यू टू कंटिन्यू स्टडी, तो इस केस में आपको 24 मंथ्स ईओएल मिलेगा, नहीं कि? तो इसमें कंडीशन है, क्या है कि मिनिमम 3 ईयर सर्विस आपको कंप्लीट करना है। द कंसर्न एम्प्लॉई मस्ट कंप्लीट 3 इयर्स सर्विस, उसके बाद आपको 24 मंथ्स ईओएल मिलेगा पब्लिक इंटरेस्ट में, आप स्टडी पर्पज के लिए। ओके, यू कंटिन्यू स्टडी इन पब्लिक इंटरेस्ट, सो इन दैट केस एक्चुअली 24 मंथ्स ईओएल अलाउ किया जाएगा, मगर आपका सर्विस मिनिमम 3 इयर्स कंप्लीट होना चाहिए। और इसमें और एक कंडीशन है कि आप रिटर्न आओगे और मिनिमम 3 इयर्स सर्विस आपको देना है। आफ्टर ज्वाइनिंग द जॉब, आफ्टर स्टडी कंप्लीशन, यू ज्वाइन द जॉब एंड अगेन यू रेंडर द सर्विस फॉर 3 इयर्स। और बिफोर 3 इयर्स इफ यू क्विट द जॉब, तब आपके ऊपर जो गवर्नमेंट खर्च किया है स्टडी टाइम में, ओके, हाउ मच मनी एक्चुअली स्पेंड बाय द गवर्नमेंट ऑन योर स्टडी, विथ इंटरेस्ट एक्चुअली गवर्नमेंट रिकवर फ्रॉम यू। तो यहां पर जो बॉन्ड होता है वो फॉर्म 6 है, ये फॉर्म 6 है। ठीक है, undertaking to refund to the government the actual amount of expenditure incurred by the government with interest in the event of his not returning to duty on the expiry of such leave or quitting the service before a period of 3 years। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये है, आप आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टडी यू ज्वाइन द जॉब एंड यू डू द जॉब फॉर 3 years, मिनिमम 3 years। बिफोर 3 years you quit the job, then how much amount of money already government spent on your study with interest government recover from the concerned employee। ठीक है, तो दो चीज है, मिनिमम सर्विस 3 इयर्स होना चाहिए, उसके बाद आपको पब्लिक इंटरेस्ट में आप स्टडी कंटिन्यू करोगे और आपको 24 मंथ्स यूएल मिलेगा। और जब आपका स्टडी कंप्लीट हो जाएगा फिर आप ड्यूटी ज्वाइन करके 3 इयर्स मिनिमम सर्विस आपको देना है। और बिफोर 3 इयर्स आप क्विट कर जाते हो, तो आप ज्वाइन किया, स्टडी कंप्लीट हो गया, आप आकर ज्वाइन किया, मगर बिफोर 3 इयर्स आप क्विट कर दिया कि रिजाइन दे दिया, तो इस केस में गवर्नमेंट जो भी पैसा खर्च किया है आपका स्टडी में विथ इंटरेस्ट रिकवर करेगा। इसके लिए गवर्नमेंट ऑलरेडी बॉन्ड ले चुका है, फॉर्म 6 में गवर्नमेंट ऑलरेडी बॉन्ड, जब आप पब्लिक इंटरेस्ट में आप स्टडी के लिए जाओगे तो आपसे गवर्नमेंट बॉन्ड लेगा और 2 परमानेंट एम्प्लॉइज का सिक्योरिटीज रहेगा। 2 परमानेंट एम्प्लॉइज वो
भी विटनेस रहेंगे, और वो जो 2 परमानेंट एम्प्लॉइज है, चाहे वो आपका इक्विवेलेंट कैडर हो कि आपका हायर ऑफिसर्स हो। ठीक है, राइट, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अभी हम कंप्लीट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव के ऊपर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन है जो रूल 32 है, रूल 32 सीसीएस लीव रूल्स 1972, रूल 32 है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। अभी आ जाइए रूल 32(1), ठीक है, सबसेक्शन 1, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव में बी ग्रांटेड टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट, मिलिट्री ऑफिसर को नहीं मिलेगा इन स्पेशल सर्कम, क्या है, when नो अदर लीव इज एडमिसिबल, कोई लीव नहीं है तो आप यूएल ले सकते हो। आपका अकाउंट में कोई लीव नहीं है तो आपको यूएल आप ले सकते हो, और जब आप यूएल लोगे आपको सैलरी नहीं मिलेगा, और आपको मालूम होगा कि आप 3 मंथ्स आगे में डिस्कस करेंगे, 3 मंथ्स यूएल लोगे, चाहे मेडिकल सर्टिफिकेट में कि विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट, विथ मेडिकल सर्टिफिकेट और विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट 3 मंथ्स, मगर इसमें सैलरी आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है आपका सपोज खाते में ईएल है, एचपीएल है, मगर आप यूएल लेना चाहते हो तो आप लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूएल ले सकते हो, मगर उसके लिए आपको लीव सैलरी नहीं मिलेगा, ले सकते हो। आपका खाते में इन योर अकाउंट ईएल इज देयर, एचपीएल इज देयर, बट यू प्रीफर यूएल, सो यू कैन टेक यूएल। एंड आप तो जानते हो सर्विस में 3 मंथ्स एक्चुअली यू कैन टेक यूएल विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट और विथ मेडिकल सर्टिफिकेट, but actually UAL is sanctioned without salary, without leave salary, right? तो ये 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट, टेम्पररी गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए रूल 32, इसको याद रखना है। रूल ये देखिए, फॉर टेम्पररी गवर्नमेंट सर्वेंट ये दे दिया रूल 32 सबसेक्शन 2, ये दिया है टेम्पररी गवर्नमेंट सर्वेंट, नॉट परमानेंट। फर्स्ट वन मैं बता दिया, चाहे टेम्पोररी हो कि परमानेंट हो, आपको याद रखना है 3 मंथ्स ड्यूरेशन ऑफ यूएल आप ले सकते हो एनी पर्पज के लिए। लेंथ ऑफ रेगुलर सर्विस कोई ऐसा कुछ नहीं है, आप 3 मंथ्स कभी भी ले सकते हो। ऑन रिकॉर्ड्स कोई मेडिकल सर्टिफिकेट यहां पर जरूरत नहीं है, आप मेडिकल सर्टिफिकेट दे रहे हो ठीक है, विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट आप ले सकते हो, एनी टाइम ले सकते हो। कोई ऐसा मिनिमम ये नहीं है कि यू मस्ट कंप्लीट 1 ईयर सर्विस मिनिमम सर्विस, की यू मस्ट कंप्लीट 2 ईयर्स मिनिमम सर्विस, ये कुछ नहीं है। 3 मंथ्स ले सकते हो यूएल एनी पर्पज के लिए, और कोई लेंथ ऑफ रेगुलर सर्विस आपको नहीं है कि आप यू मस्ट डू द सर्विस फॉर 1 ईयर, मिनिमम 1 ईयर सर्विस के बाद ये मिलेगा, ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है। ये यहां पर विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट आप ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर आ गया, मिनिमम 1 ईयर सर्विस आपको कंप्लीट करना है। टेम्पररी गवर्नमेंट सर्वेंट मस्ट कंप्लीट 1 ईयर सर्विस, मिनिमम 1 ईयर सर्विस, तब उसको 6 मंथ्स यूएल मिलेगा मेडिकल सर्टिफिकेट में, ओके, मेडिकल पर्पज में, मेडिकल सर्टिफिकेट में। बट यहां पर कंडीशन है मिनिमम 1 ईयर सर्विस, ओके, मिनिमम 1 ईयर सर्विस मस्ट बी कंप्लीटेड बाय द टेम्पररी एम्प्लॉय, and for 6 months he can take UL on medical certificate and ground is medical। और जो उसका जो ये जो 32 सबसेक्शन 2 बीट सी ये डिलीट हो चुका है, ठीक है। यहां पर आ गया, यहां पर क्या है भाई, मिनिमम 1 ईयर सर्विस कंप्लीट किया है टेम्पररी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मिनिमम 1 ईयर सर्विस मस्ट बी कंप्लीटेड बाय द टेम्पररी एम्प्लॉय, क्योंकि ये टेम्पररी एम्प्लॉय के लिए है, और आपको मेडिकल ग्राउंड में मेडिकल सर्टिफिकेट देकर 18 मंथ्स आपको यूएल मिलेगा। और किस केस में, ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी, ओके, वो दिया है पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस और प्लेवसी ऑफ ट्यूबरकुलर ओरिजिन इन रिकॉग्नाइज्ड सैनिटोरियम, pulmonary tuberculosis or pleurisy of tubercular origin who receives treatment, that is residence under tuberculosis specialist and produces certificate signed by that specialist to the effect that he is under his treatment and that he has reasonable chances of recovery on the expiry of the leave। तो ये सब केस है, रिक्वायरमेंट्स है, इसमें तो मेडिकल सर्टिफिकेट आप देना पड़ेगा। तो यहां पर मिनिमम 1 ईयर सर्विस कंप्लीटेड बाय द टेम्पररी एम्प्लॉय ऑन मेडिकल ग्राउंड विथ मेडिकल सर्टिफिकेट, you must get 18 months UL but certain diseases,
ओके, और क्या दिया है, लेप्रोसी, कैंसर, ये सब, लेप्रोसी, कैंसर, ट्यूबरकुलोसिस, मेंटल इलनेस, इसमें मगर मिनिमम 1 सर्विस कंप्लीट करना है। द टेम्पररी एम्प्लॉय मस्ट कंप्लीट 1 year सर्विस एंड देन मेडिकल सर्टिफिकेट ऑन मेडिकल ग्राउंड। ओके, 18 months UL can be sanctioned, but diseases actually the concerned temporary employee suffering in tuberculosis, cancer, leprosy, mental illness, ये सब याद रखना है। और एक टेम्पररी हो कि परमानेंट हो, ये दोनों के लिए मिनिमम 3 year सर्विस। ओके, मिनिमम completion of 3 years, minimum completion of 3 years सर्विस ऑन पब्लिक इंटरेस्ट में यू कैन कंटिन्यू स्टडी। आप 3 years कंटिन्यूअस सर्विस कर चुके हो पब्लिक इंटरेस्ट में, स्टडी पर्पज के लिए आपको 24 months यूएल मिलेगा, ठीक है, सर्टिफाइड इन पब्लिक इंटरेस्ट। ये दोनों के लिए, चाहे टेम्पोररी हो कि परमानेंट हो, टेम्पोररी गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए एप्लीकेबल है, परमानेंट के लिए भी एप्लीकेबल है, और कंडीशन में बोल चुका हूं, अभी आगे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी चलेंगे 32 रूल 32(3) आ गया, सबसेक्शन 3 बीटे। इसमें क्या दिया गया है, अभी मैं बताया था कि चाहे परमानेंट हो टेम्पोररी एम्प्लॉय हो, दोनों के लिए इसमें क्या है, मिनिमम 3 years सर्विस होना चाहिए। इसके बाद पब्लिक इंटरेस्ट में स्टडी पर्पज के लिए आपको ईओएल मिलेगा 24 months, ठीक है। तो इस केस में आपको फॉर्म 6 में एक बॉन्ड देना पड़ेगा, ठीक है। ये बॉन्ड में क्या होगा कि आपका स्टडी कंप्लीट होने के बाद आप ड्यूटी ज्वाइन करोगे और यू कैन रेंडर सर्विस फॉर मिनिमम 3 years। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टडी यू ज्वाइन द ड्यूटी एंड यू डू द जॉब फॉर 3 years। यदि 3 years बिफोर आप क्विट कर लेते हो कि रिजाइन दे देते हो, तो हाउ मच मनी एक्चुअली गवर्नमेंट स्पेंट ऑन योर स्टडी विथ इंटरेस्ट गवर्नमेंट कैन रिकवर, ठीक है। तो फॉर्म 6 एक बॉन्ड होता है। तो यहां पर बहुत कुछ चीज बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। तो यहां पर जो यूएल 24 months मिलेगा पब्लिक इंटरेस्ट में, आप स्टडी पर्पज के लिए आपको भेजा जाएगा, यहां पर यूएल 24 months मिलेगा, ओके। एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव आपको 24 months मिलेगा। तो यहां पर एक आपको बॉन्ड देना है, फॉर्म 6 में आपको एक बॉन्ड देना है, और बॉन्ड में यही क्लियरली मेंशन होगा कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टडी देन यू जॉइन द ड्यूटी एंड देन यू मस्ट डू द जॉब फॉर 3 years, एंड बिफोर 3 years इफ यू क्विट द जॉब देन हाउ मच मनी एक्चुअली स्पेंड बाय द गवर्नमेंट ऑन यू, इट कैन बी रिकवर्ड विथ इंटरेस्ट। और उसमें क्या है, आगे में देखेंगे, 2 परमानेंट एम्प्लॉइज का सियोरिटीज रहेगा, विटनेस भी वो रहेंगे। समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां पर है बॉन्ड, द बॉन्ड शैल बी सपोर्टेड बाय सियोरिटीज फ्रॉम 2 परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैविंग ए स्टेटस कंपेरेबल टू और हायर। चाहे आपका जो रैंक है उसी रैंक का होना चाहिए और उससे हायर रैंक होना चाहिए। जो 2 परमानेंट एम्प्लॉइज गवर्नमेंट सर्वेंट्स आपके लिए विटनेस रहेंगे, वो आपका रैंक का हो कि आपसे हायर रैंक हो, ठीक है। तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 32 रूल 32(3) ए बी दोनों सेक्शन को आपको याद रखना है। तो इसमें क्लियरली दिया है कि मिनिमम 3 year सर्विस, द कंसर्न एम्प्लॉई मस्ट कंप्लीट 3 year सर्विस, then after that on public interest he go for study and 24 months EOL can be sanctioned, right? Then in form 6 also, when EOL is sanctioned, then in that time actually form 6 one bond he must fill in form 6. 2 permanent employees also they can give their witness. 2 permanent employees, it means maybe इक्वल रैंक ऑफ द कंसर्न एम्प्लॉय और हायर देन दैट, ठीक है। और वो बॉन्ड में क्या होगा, बॉन्ड में ही लिखा जाएगा, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टडी द कंसर्न एम्प्लॉय ज्वाइन द ड्यूटी एंड डू द जॉब फॉर 3 years, एंड इफ द कंसर्न एम्प्लॉय क्विट द जॉब बिफोर 3 years, देन हाउ मच मनी स्पेंड बाय द गवर्नमेंट ऑन हिज स्टडी विथ इंटरेस्ट कैन बी रिकवर्ड, ठीक है, बढ़िया। चलो 32(4)
तो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब है, रूल 32(4) चाहे परमानेंट हो कि टेम्पररी, दोनों के लिए। जब वो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए चाहे परमानेंट हो कि टेम्पररी एम्प्लॉय हो, अटेंडिंग प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग कोर्स आर द सेंटर्स नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, उनको भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव मिलेगा। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव सैंक्शन कौन करेगा? एचओडी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। और ये चाहे टेम्पररी एम्प्लॉय हो कि परमानेंट हो, याद रखो। और कास्ट होगा ओनली शेड्यूल कास्ट, एससी एसटी, ओनली एससी एंड एसटी फॉर प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग कोर्स। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग कोर्स उनको ईओएल मिलेगा और ईओएल एचओडी सैंक्शन करेगा। ओके, और ओनली एससी एसटी एम्प्लॉइज, और ये चाहे परमानेंट हो कि टेम्पररी हो। क्लियर? नेक्स्ट वन, ये जो 30-5 टू स्पेल्स, अभी मैं बताया था रूल 30-5 क्या है। टू स्पेल्स में अभी बताया था, जैसे सपोज यू हैव टेकन 10 to 12 नवंबर ईओएल आप ले लिए, राइट, और उसमें 13th और 14th नवंबर आपका पब्लिक हॉलीडेज हो गया, पब्लिक हॉलीडेज हो गया, और फिर आप 15 से 17 नवंबर ईओएल ले लिए। क्या ये एक स्पेल होगा ना, सेपरेट स्पेल होगा? ये जो 10 to 12 नवंबर और 15 to 17 नवंबर, तो ये एक ही स्पेल होगा, क्योंकि मिडिल में कुछ इंटरवेंशन हॉलीडेज आ गया। यदि मिडिल में इंटरवेंशन हॉलीडेज आता है तो ये टू स्पेल, ये एक ही स्पेल होगा। समझ आ गया? ट्रीटेड एज, शैल बी ट्रीटेड एज वन कंटिन्यूअस स्पेल ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव। क्लियर हो जाएंगे आप, ठीक है? चलो 30-6 यहां पर क्या है? हाँ, अभी ये बताया था, सपोज आप 5 डेज, आप 5 डेज एक टाइम में 5 डेज सीएल होता है, आप 5 डेज सीएल लिया, मगर आप 9 डेज छुट्टी में रह गए, तो 4 डेज आपको एब्सेंट डाल दिया गया, है ना? तो एब्सेंट डाल दिया गया, तो लीव अथॉरिटी के पास पावर है, ये 4 डेज एब्सेंट पीरियड को वो ईओएल डिक्लेयर कर सकता है। ओके, ईओएल डिक्लेयर करेगा और यहां पर आपको लीव सैलरी नहीं मिलेगा। ठीक है, वही 30-6 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू ग्रांट लीव में कम्यूट रेट्रोस्पेक्टिवली पीरियड्स ऑफ एब्सेंस विदाउट लीव इनटू एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव। ठीक है, चलो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्वालिफाइंग सर्विस के ऊपर दिया है। ये क्या है देखिए, जैसे आप एक एग्जाम्पल दिया है, ये आप देख लीजिए, ये मेमो गवर्नमेंट इशू किया था, इसमें क्लियरली मेंशन था, जैसे जुलाई 1 में आपका इंक्रीमेंट है, आप जुलाई 1 में, एक उदाहरण देता हूं, जुलाई 1 2022 टू जून 30 2023 में, इसी पीरियड में यदि आपका क्वालिफाइंग सर्विस लेस देन 6 मंथ्स होता है, आपका क्वालिफाइंग सर्विस लेस देन 6 मंथ्स होगा, तब आपको इंक्रीमेंट जुलाई 1 2023 में नहीं मिलेगा। यहां पर क्रॉस कर दिया, तो आपको मिलेगा, कब मिलेगा ना, नेक्स्ट जुलाई 1 2024 में मिलेगा। आपको और एक बार बताता हूं, जैसे कंडीशन है जुलाई में, जो मेरा एग्जांपल, माय एग्जांपल यू सी, जुलाई 1 2022 टू जून 30 2023, इसी पीरियड में, क्योंकि आपका जुलाई 1 में इंक्रीमेंट लगता है, तो जो जुलाई 1 2022 टू जून 30 2023, इसमें आपका क्वालिफाइंग सर्विस लेस देन 6 मंथ्स हो गया, लेस देन 6 मंथ्स हो गया, तो आपको जुलाई 1 2023 में इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, नेक्स्ट ईयर जुलाई 1 2024 में जाकर मिलेगा। तो आपका इंक्रीमेंट एक लॉस हुआ जुलाई 1 2023, क्योंकि आप ये जो पीरियड है ना, जुलाई 1 2022 टू जून 30 2023, इसी पीरियड में आपका क्वालिफाइंग सर्विस 6 मंथ से कम हो गया, तो इसके वजह से जुलाई 1 2023 में आपको इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, तो आपको फिर इंक्रीमेंट नेक्स्ट ईयर जुलाई 1 2024 में मिलेगा। तो आपको याद रखना है इस क्वेश्चन, यदि आपका एक ईयर में क्वालिफाइंग सर्विस मिनिमम 6 मंथ्स होना चाहिए, यदि क्वालिफाइंग सर्विस लेस देन 6 मंथ्स हो गया, तब आपका इंक्रीमेंट को अफेक्ट करेगा। ठीक है, ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान देना है, वही चीज देख लीजिए।
क्लियरली दिया है, राइट। और कुछ दिया है, देखिए ऐसा कुछ पीरियड है जिसमें आपका क्वालिफाइंग सर्विस में इंक्लूड होगा। देखिए पर्पज है यूएल ग्रांटेड ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट टू ज्वाइन और रीजॉइन ड्यूटी ऑन अकाउंट ऑफ सिविल कमोशन। ऐसा कुछ सिविल कमोशन हो गया तो आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो, तो वहां पर जो यूएल मिलेगा वो क्वालिफाइंग सर्विस में इंक्लूड होगा। काउंट आज क्वालिफाइंग सर्विस, वो क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट होगा, क्योंकि सिविल कमोशन हो गया। सिविल कमोशन में आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो, रीजॉइन नहीं कर पा रहे हो, तब वो पीरियड को यूएल डिक्लेयर कर दिया गया। तो यूएल ये क्वालिफाइंग सर्विस में इंक्लूड होगा। तो क्वालिफाइंग सर्विस में इंक्लूड हो रहा है मींस कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका इंक्रीमेंट को अफेक्ट नहीं करेगा या आपका पेंशन को अफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि जब आपका ईयर में लेस देन 6 मंथ्स क्वालिफाइंग सर्विस हो जाता है, लेस देन 6 मंथ्स क्वालिफाइंग सर्विस हो जाता है, तो अब आपका इंक्रीमेंट अफेक्ट होगा, पेंशन अफेक्ट होगा, ठीक है। तो मगर यहां पर ऐसा 2 कंडीशन है जहां पर वो क्वालिफाइंग सर्विस में इंक्लूड होगा। सिविल कमोशन हो गया, आप ज्वाइन नहीं कर पाए, तो वहां पर आपको यूएल डिक्लेयर कर दिया गया, मगर ये यूएल क्वालिफाइंग सर्विस में इंक्लूड होगा। और एक क्या है, मैं अभी बताया था, आप स्टडी के लिए, टेक्निकल साइंटिफिक स्टडीज के लिए आपको 24 मंथ्स यूएल मिलता है, 24 मंथ्स यूएल मिलता है, ठीक है। इस केस में ये भी आपका क्वालिफाइंग सर्विस में इंक्लूड होगा। तो ये दोनों केस आपका क्वालिफाइंग सर्विस में इंक्लूड होगा। मगर आपको याद रखना है, यदि आपका एक ईयर में आपका क्वालिफाइंग सर्विस लेस देन 6 मंथ्स होता है, तो आपका इंक्रीमेंट को अफेक्ट करेगा, उसको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। और ये बहुत एक नोट देख लीजिए, जो नोटिस पीरियड है वॉलंटरी, आप वीआरएस ले रहे हो, आप नोटिस पीरियड, आप नोटिस दे दिया, ये जो नोटिस पीरियड के अंदर आप यूएल नहीं ले सकते, नहीं ले सकते, वही दिया है ये, इसमें यूएल कैन नॉट बी अवेल्ड कंकरेंटली ड्यूरिंग द नोटिस पीरियड व्हेन गोइंग ऑन वॉलंटरी रिटायरमेंट। और ड्यूरेशन ऑफ जो यूएल है यहां पर दे दिया, आप रूल 12 देखिए, आपको मैक्सिमम 5 ईयर्स, आप कोई भी लीव लो मगर कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, 5 ईयर्स से ज्यादा होगा तो ये मान लिया जाएगा कि आप जॉब से रेजिग्नेशन दे दिया। तो भाई आप यूएल लोगे तो अप टू 5 ईयर्स, इट कैन नॉट एक्सीड 5 ईयर्स। तो वही ड्यूरेशन ऑफ ईएल दिया है, मैक्सिमम ड्यूरेशन क्या है, मैक्सिमम ड्यूरेशन 5 ईयर्स होगा। तो वही है, नो गवर्नमेंट सर्वेंट, ये रूल 12 सीसीएस लीव रूल्स 1972 में है, नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल बी ग्रांटेड लीव ऑफ एनी काइंड फॉर ए कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। तो 12(2) में नॉर्मली यदि आपका एक्सीडिंग 5 ईयर्स हो जाता है तो ये मान लिया जाएगा कि जॉब से आप रेजिग्नेशन दे दिया। यदि क्वेश्चन आता है यूएल मैक्सिमम कितना ले सकते हो, 5 ईयर्स, ठीक है। चलो ये पूरा पोर्शन था, अच्छे से मैं डिस्कस किया पूरा दोनों को, जो लीव नॉट ड्यू, एलएनडी एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव। 10 MCQ क्वेश्चंस है, प्लीज विथ पेशेंस यू गो थ्रू द क्वेश्चंस। अगेन प्लीज subscribe my channel, share my channel, like my channel so that you can get notification, okay, for my upcoming videos। आज इतना ही है, थैंक यू एंड